Hello students, my name is Hira Lotia from JP English Medium School. Kids, I'm back with my session number 2 of chapter number 7, Adaptations in Plants. Now kids, adaptation in plants. In session number 1, what we have done? We have done vocabulary words and meanings. But in today's section, I'm going to explain you all the things about habitat and adaptations. And point number 2, terrestrial plants. There are 5 types of terrestrial plants are there, but in today's section I am only going to explain you 3 only. Number 1, plants in plains with less rainfall. Number 2, plants in plains with heavy rainfall. And number 3, plants in mountains. So first of all, let's revise all the things about last session. तो फटाफट से vocabulary words revise कर लेते हैं. चलो, number 1, habitat, Habitat, habitat. Number 2, adaptations, Adaptations, adaptations. Number 3, deduce, Dedidous, deduce. Number 4, plains, Plains, plains. Number 5, insectivorous, Insectivorous, insectivorous. Number 6, saprophytic, Saprophytic, saprophytic. Number 7, underwater, Underwater, underwater. Number 8, hollow, Hollow. Number 9, desert, Desert. Number 10, spin, Spin. Number 11, sugarcane, Sugarcane, sugarcane. Number 10, 12, terrestrial, Terrestrial, terrestrial. Number 13, saline, Saline. Number 14, nature, Nature. Number 15, coastal, Coastal. Now let's read it our meanings once. Number 1, adaptations, the process of changing something to suit a new situation. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कोई भी थिंग हो उसको न्यू सिचुएशन में सूट करना है, that process is called adaptations. Number 2, deciduous, trees that shed leaves every year. ऐसे trees जो leaves को shade करते every year, हर साल ये process इसकी continue रहती है. Number 3, saprophytic, plants that absorb food from dead plants and animals. Saprophytic मतलब कि ऐसे plants जो dead अपना food किसे बनाते हैं, जो dead animals होते हैं और जो dead plants होते हैं उसको अपना food बनाते हैं. Now number 4, insectivorous plants. Plants that feed on insects are called insectivorous plants. Insectivorous plants मतलब ऐसे plants जो insects को खा के अपने आप को feed करते हैं. That plants are called insectivorous plants. Number 5, saprophytic plants. Plants that cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals are called saprophytic plants. मतलब ऐसे plants they are not preparing their own food, they are depending on others, मतलब depending on dead plants and animals. ऐसे plants जो dead animals और dead plants के ऊपर अपने food के लिए dependent होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? Saprophytic plants. Clear kids? So here we completed our revision of session 1. Now let's start our today's session. Topic number 1, habitat and adaptations. Now kids, a mango tree grows on land, a lotus in water, and cactus in desert. So there are different types of plants are there, right? We usually see in nature में different types के plants देखते हैं, right? तो सब जगह different plants होते हैं, वो different तरह से different जगह पे grow होते हैं, right?
जैसे लोटस है वो वाटर में ग्रो होता है, मैंगो ट्री है वो लैंड के ऊपर ग्रो होता है, कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रो होते हैं, राइट? देयर आर मैनी अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। ऐसे भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट जगह पे ग्रो होते रहते हैं, राइट? मतलब नेचुरली ग्रो होते हैं, कोई कोई को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, लैंड के अकॉर्डिंग, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट वे सब लोग ग्रो होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैट। इसके अंदर हम ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। नाउ हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अर्थ। अर्थ पूरा है, राइट? अर्थ में सब जगह पे प्लांट्स तो ग्रो होते ही है, बट सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वे में ग्रो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि सब जगह पे रोजीज ही ग्रो हो रहे, सब जगह पे ग्रासी ग्रो हो रहे, सब जगह पे टिक ट्री ग्रो हो रहे, सब जगह पे बनियन ट्री ग्रो हो रहे, नहीं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आर देयर, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोइंग प्लेसेस ऑफ प्लांट्स आर देयर। क्लियर? Some plants grow well on land, whereas other plants grow well in water. ऐसे भी plants जो होते हैं, they are growing well in land, जो land के ऊपर अच्छी तरह से grow होते हैं, और ऐसे plants भी है जो पानी के अंदर भी अच्छी तरह से grow होते हैं, है ना? Even कोई भी land एक है particular कि यहाँ पे ये अच्छा grow हो रहा है, तो उसमें भी variations होते हैं, कोई under water grow होता है, कोई land के ऊपर grow होता है, right? The place where a plant or any living thing lives in nature is called its habitat. कोई भी पर्टिकुलर प्लेस होती है, वहाँ पे नेचुरली कोई ह्यूमन बीइंग रहता है या फिर नेचुरली कोई प्लांट ग्रो होता है, हम उसकी नेचुरली हैबिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। कोई भी एनिमल्स है, आपको पता है कि कोई कोई एनिमल्स होते हैं कोई कोई प्लेस पे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो उसकी नेचुरली हैबिटेट है, उसका बोर्न भी नहीं वहीं पे हुआ है, राइट? वो क्या हुआ? उसकी नेचुरली हैबिटेट हुई। हमारे यहाँ पे इंडिया की नेचुरली हैबिटेट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ अ कैक्टस प्लांट इन डेजर्ट। तो कैक्टस प्लांट क्यों डेजर्ट में ग्रो होते हैं? क्योंकि उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे होती है। मतलब कि दूसरे कोई प्लांट्स क्यों डेजर्ट में ग्रो नहीं होते? क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारी गर्मी होती है, लेस वाटर होता है, ड्राई प्लेस होती है, वहाँ पे दूसरे प्लांट्स कंफर्टेबली ग्रो हो सकते नहीं है। बट ये कैक्टस ऐसा प्लांट है कि जिसको गर्मी वो बेयर कर लेता है, फिर उसको लेस वाटर चाहिए, ड्राई मिट्टी होती है, ड्राई सॉइल होती है, उसमें भी वो इजीली ग्रो हो जाता है। तो उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो उस वजह से उसकी हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है। क्लियर? Plants growing in different habitats have certain features that are suited to their natural surroundings. ऐसे भी plants जो होते हैं कि वो अपने आप को उस जगह पे सूट करने की ट्राई करते हैं, तो उसको हम क्या उसके सराउंडिंग्स में उसको टाइप को सूट करने की ट्राई करते हैं। किड्स, हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं, राइट? तो उसके फेमस फेमस फूड्स होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। कहीं पे ओशन है, सी है, तो वहाँ पे सी फूड फेमस होता है। यहाँ पे इंडियन है तो हमारी इंडियन थाली बहुत फेमस है, गुजराती थाली, राइट? तो जैसे जहाँ पे भी जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अगर वहाँ की सिचुएशन में सूट करवा देते हैं, हमारा क्या हुआ कि हमने उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को एडप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एडप्ट कर लिया। क्लियर? Features that help plants and animals to adjust themselves to their natural surroundings or habitat is called adaptation. अगर यहीं पे अच्छी तरह से लोटस ग्रो हो रहे हैं, राइट? तो लोटस को जो फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है उसमें से शायद से कुछ भी कंडीशन कंफर्टेबल ना, फिर भी वो अपने आप को कंफर्टेबल करके उस सिचुएशन में सूट करके उसको एडजस्ट कर रहा है और अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, उसका मतलब उसने नेचुरली वो सारी की सारी चीजें एडप्ट कर ली है। क्लियर? नाउ
Based on habitats, plants can be broadly grouped into terrestrial plants and aquatic plants. किस सब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लांट किस तरह से कहाँ पे ग्रो हो रहा है? तो based on habitats, उसके habitats को देख के we differentiate two types of plants. हमने plants को two types में divide कर दिया है. One is terrestrial plants and another one is aquatic plants. Terrestrial plants जो सारे के सारे plants land के ऊपर grow होते हैं और aquatic plants जो water के अंडर grow होते हैं. Clear kids? Now let's begin terrestrial plants. Terrestrial plants that grow on land are called terrestrial plants. जो plants land के ऊपर grow होते हैं उस plants को हम क्या बोलेंगे? Terrestrial plants. Depending on the different terrestrial habits, plants can be divided in 5 main groups. Kids, terrestrial plants तो होते ही है जो land के ऊपर grow होते हैं, पर उसमें भी 5 categories होती है. कितनी categories होती है? 5 categories. उसकी habitat को देख के 5 category में उसको divide कर दिया. How many categories we divided terrestrial plants? In 5 categories, right? Number 1 is plants in plains with less rainfall. कि ऐसे plants जहाँ के plains में बहुत ही less rainfall आती है, फिर भी वहाँ पे अच्छी तरह से plants grow होते हैं. फिर है number 2, plants in plains with heavy rainfall. कि ऐसे plants जहाँ पे जगह पे plants भी grow है, but rainfall heavy होती है, बहुत ही heavy rainfall होती है. Third number है plants in mountains. इवन ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं माउंटेन्स के ऊपर भी ग्रो होते हैं, राइट. नंबर 4, प्लांट्स इन डेजर्ट. कि ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं जो इजीली डेजर्ट में ग्रो होते हैं. एंड लास्ट वन नंबर 5, प्लांट्स इन सैलाइन कोस्टल एरिया. मतलब कि पानी के अंदर के सैलाइन वाटर, खारा पानी के अंदर, नमक वाले पानी के अंदर भी अच्छी तरह से ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं. So these are the 5 different categories that is divided of terrestrial plants. Clear? In today's session, I'm only going to explain you 3-1. Now let's start. Number 1, plants in plains with less rainfall. कि ऐसी जगह पे अच्छी तरह से प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, बट वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है? बहुत ही लेस होती है. Plains are large flat areas of land. मतलब प्लेन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी सी जगह है. प्लेन रेनफॉल मतलब कि बहुत बड़ा एरिया है, फ्लैट सरफेस है. मतलब उस टाइप की लैंड में क्या होता है कि वहाँ पे लेस रेनफॉल आती है. क्या आती है? लेस रेनफॉल. Some plains have very hot weather with a few months of rainfall. ऐसे प्लेन्स जो होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही हॉट, मतलब बहुत ही गर्म क्लाइमेट होता है. वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े से महीने, few months के लिए ही रेनफॉल होती है. मैंगो, बनियन, नीम and people trees are examples of trees that grow here. Kids, I hope so कि आप लोगों ने मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री ये सारे के सारे देखे होंगे. बिकॉज यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमारे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है. हमारे एटमॉस्फेयर में ईयरली हार्डली 3 to 4 months ही रेनफॉल होता है, राइट. कभी कभी तो 2-3 months ही रेनफॉल होता है, राइट. तो उस कंडीशन में कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं? मैंगो ट्रीज, बनियन ट्री, पीपल ट्री आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स इन प्लेन्स विथ लेस रेनफॉल. मतलब यहाँ पे बात किसकी हुई? हमारी हुई, हमारे इंडिया की बात हुई, राइट किड्स. आजू बाजू में आप लोगों ने सारे के सारे ट्रीज नोटिस किए ही होंगे, राइट. नाउ एडेप्टेशन. उसने क्या कौन सी चीज एडेप्ट की है? Trees growing in these areas have many branches. यहाँ के जो ट्रीज जो होते हैं इसी एरिया के, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है. क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस होती है यहाँ पे. फिर है most trees found in these areas shed their leaves during
these trees are called deciduous trees. मतलब ये एटमॉस्फेयर में जो जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सारे के सारे ट्रीज अपने लीव्स को ऑटम सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं. क्या करते हैं? ऑटम सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं. उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? deciduous प्लांट्स. क्या बोलेंगे? deciduous ट्रीज. मतलब जो ये ट्रीज होते हैं वो एवरी ईयर अपने लीव्स को शेड करते हैं. ખરી જાય ના એવરી યર ન્યુ લીવ્સ અને હર વર્ષે નવા લીવ્સ પછી આવવા માંડે. ક્લિયર કિડ્સ? तो जो प्लांट्स एवरी ईयर अपने लीव्स को शेड करता है उस प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? deciduous trees. Right? These trees are called deciduous trees. Clear kids? Once again I am reading adaptation of plants in plains with less rainfall. मतलब कि उसने ये सारे के सारे प्लांट्स और ट्रीज ने अपने आप को उस अकॉर्डिंग सिचुएशन में अपने आप को एडेप्ट कर लिया है. तो कौन कौन से एडेप्टेशंस की है? ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज हैव मेनी ब्रांचेस. कि उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है. Most trees found in these areas shed their leaves during autumn. These trees are called deciduous trees. Clear kids? Now let's do point number 2. Plants in plains with heavy rainfall. कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही heavy rainfall होता है. Some plains receive heavy rainfall. कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे heavy rainfall होता है. The weather is hot and damp in this area. मतलब कि ऐसे एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बहुत ही हॉट और डैम्पी एटमॉस्फेयर होता है. मतलब कि हम अपने आप को स्टिकी फील करते हैं. राइट? रबर, कोकोनट एंड teak trees are examples of trees that grow here. उस टाइप के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा रेनफॉल होता है. उस टाइप के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से ट्रीज की हैबिटेट होती है? तो एक तो रबर ट्री बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है. कोकोनट ट्री, इवन टिक ट्रीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन अ प्लेन्स विद अ हेवी रेनफॉल. Clear? Smaller plants such as sugarcane, cotton and rice also grow here. Even small plants भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. जो प्लांट्स को बहुत सारी वाटर की जरूरत होती है तो वो यहाँ पे इजीली ग्रो होते हैं. स्मॉल प्लांट्स में कौन कौन से? जो कि सुगरकेन, कॉटन एंड राइस. सुगरकेन में हमने बोला था ना वोकैबुलरी को इसमें शेडी को क्या बोलते हैं? शुगरकेन. फिर कॉटन प्लांट्स भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और राइस के प्लांट्स भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. नाउ किड्स, उसी प्लेस की उस सारे प्लांट्स और ट्रीज ने क्या एडेप्टेशंस की? क्योंकि ट्रीज ग्रोइंग इन दिस एरिया हैव मेनी लीव्स एंड डू नॉट शेड देम इन वाटर. कि जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, हेवी रेनफॉल होता है, उस जगह पे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स शेड करते नहीं है. ऑटम सीजन में भी वो अपने लीव्स को शेड करते नहीं है. क्लियर किड्स? मोस्ट ट्रीज फाउंड इन दीज एरियाज रिमेन ग्रीन थ्रूआउट द ईयर. दीज ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. मतलब कि ये सारे के सारे प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर बहुत ही ग्रीन रहते हैं. आपको पता है यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं उसके येलोइश कलर हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, गिर जाते हैं. राइट? ऐसे ऐसे चीज हम लोगों ने नोटिस की है. बट जहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल है वहाँ पे कि उसके लिए थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, शेड्स भी नहीं करते, मतलब गिरते भी नहीं है. उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? एवरग्रीन प्लांट्स. क्या बोलेंगे किड्स? एवरग्रीन प्लांट्स या फिर एवरग्रीन trees. Clear? If suppose I ask, write down 3 examples of evergreen trees, then you are supposed to write down coconut tree, teak tree and rubber tree. Kids, आप लोगों ने कभी ये 3 trees देखे? Coconut tree, teak tree and rubber trees.
Here I am sharing an image of coconut tree, big tree and banyan tree. Clear kids? आपको दिखाई दे रहा है ना? These are the plants in plains with heavy rainfall. Clear? Now last one. Plants in mountains. ये ऐसे plants जो mountains में भी grow होते हैं. It is generally colder in mountains than in plains. जमीन जो होती है, plains जो होते हैं, plain area, वहाँ से बहुत ही ठंडी होती है mountains में. मतलब कि जैसे जैसे ऊपर वाले रीजन में जाते हैं ना किड्स, वहाँ पे ठंडी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. क्या हो जाता है? मतलब कि एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है? कोल्ड होता है. जैसे 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 ऊपर के एरिया में जाएंगे वहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है. Fir, pine and cedar trees are examples of trees that grow here. Smaller plants such as mosses and ferns also grow here. Kids, आप लोगों ने कभी fir tree, pine tree, cedar tree देखा है? These are the examples of trees which grows on land or grows on mountains. ये ऐसे trees हैं जो mountains के ऊपर grow होते हैं. मतलब उनकी shape कैसी होती है? ऐसी shape होती है. कैसी होती है? ऐसी shape होती है कि उसके ऊपर snowfall आए या फिर ठंडी हो, गर्मी तो होती नहीं है mountains के ऊपर. snowfall आए तो उसके ऊपर easily उससे निकल जाता है. These are the examples of plants in mountain. ये mountains में जो plants grow होते हैं उसमें क्या adaptations की होती है? उसकी adaptations ये है, most trees in the mountains grow tall and straight. Mountains के ऊपर जो trees grow होते हैं तो बहुत ही tall, मतलब बहुत ही लंबे और बहुत ही straight. यहाँ पे हमारे trees को क्या हो जाता है कि थोड़े थोड़े bend हुए होते हैं, छोटे होते हैं, right? बट ये माउंटेन्स के ऊपर ट्रीज जो ग्रो होते हैं ना, बहुत ही टॉल एंड स्ट्रेट ट्रीज होते हैं. These trees are usually cone shaped. मैंने बोला ना, ये यूजुअली कौन से शेप के होते हैं? कॉन शेप के होते हैं. This shape helps to slide snow off their branches. मतलब कि उसके ऊपर स्नो आए तो इजीली स्लाइड्स करते हैं ना, लोग उसके खाओ जो ना, मतलब तरह स्लैब सी जाओ जो ना, तो लाइक उसके शेप उस तरह से होता है कि स्नो होता है वो स्लाइड से निकल जाए. That's why its shape is cone shaped. Most trees have small needle-like leaves. ऐसे बहुत सारे trees हैं कि उसके leaves जो होते हैं ना, small needle जैसे होते हैं. कैसे होते हैं? small needle shape जैसे होते हैं. Most trees do not have flowers. यहाँ पे जो trees mountains में होते हैं, most of प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते नहीं है. फ्लावर्स के बदले क्या होता है कि दे बेयर कॉर्न्स दैट कैरी सीड्स इनसाइड. मतलब कि वो क्या बेयर करते हैं? कॉर्न्स बेयर करते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं. क्लियर किड्स? So here we completed our plants in mountains also. In next session I am going to explain you number 4 and number 5. Number 4 is plants in deserts and number 5 is plants in saline and coastal areas. उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैं aquatic plants को आपको explain करूँगी. Clear kids? I have shared a PDF with you, right? Try to complete answers by your